Good morning to all. On the behalf of SBCT College Nagpur, I, Dr. Damayanti Mate, Faculty of SBCT College Nagpur, welcome to all for Research Methodology Workshop and this program organized by SBCT College Nagpur, that is 7 days Research Methodology Workshop. This session started from 21st February 2022 to 26 February 2022, and today is the last day of Research Methodology Workshop. I heartily welcome to Dr. Sujit Maitre sir, Principal of SBCT College Nagpur, and also welcome to coordinators of Research Methodology Workshop, all the resource persons, research scholars, and the teachers. It's a great pleasure to me to introduce today's guest, Dr. Mohini Bherwani Madam, and her topic is Tools of Research. First of all, I introduce to Dr. Mohini Bherwani Madam. Madam has been working in library and information science discipline since 2004 in SBCT College, Nagpur. She completed her Bachelor of Library Science in 2004 and Master of Library Science in 2005 from Department of Library and Information Science, RTM, Nagpur University, Nagpur. She was a university topper during Bachelor of Library Science and Master of Library Science and recipient of S. Chand Gold Medalist. She cleared NET in Library and Information Science in a first attempt in summer 2005. She began her career in library science discipline from Chirayu KC Bajaj College of Education, Nagpur. After serving there as librarian for 2 years, she joined SBCT College, Nagpur on 1st July 2006 and still working now. She has also worked as lecturer on contractual basis at Joshi College of Library and Information Science. Her subject of teaching was information analysis, consolidation, and repackaging. She completed her research work under Dr. Mangala Hirwade and was awarded PhD degree on 23rd June 2011. The topic of research work was metadata in context to open access initiative, a critical study. She is author of 5 books and one of book is prescribed in the syllabus of MSc Geography, Bangalore University. She has published 49 research papers in various conferences, proceedings and journals and written chapters in various books. She has delivered lectures as resource person in many occasions. At college level, she is also coordinating as Swayam Mentor, AQAR Criteria 4 Head, NSS Program Officer, ASCHE Nodal Officer, also a chairperson of website committee and in charge of competitive examination center. So I request to Dr. Mohini Bherwani Madam, please start your lecture. Very good morning to all. Thank you, Mate Madam, for such nice introduction of me. I thank the organizers of this workshop, Dr. Rajendra Naikwade sir, Dr. Anil Shende sir, for giving me this opportunity to speak over here. The topic assigned to me is research tools. Let me start with my presentation. मैडम मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दीजिए ना, कोर्स बना दीजिए मुझे. केला है मैडम तुम्हाला कोर्स? नहीं सर, नहीं किया है. नहीं केलं? हाँ आलाय. विजिबल है मेरा स्क्रीन? हाँ दिख रहा है मैडम. Okay sir. The topic of my lecture today is research tool. So first I will आज इस टॉपिक रिसर्च टूल्स के अंदर मैं यही कंटेंट्स कवर करने वाली हूँ. अंडरस्टैंडिंग व्हाट रिसर्च इज, बेसिक रिसर्च का जो कंसेप्ट है वो बताऊंगी मैं. अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेटा इज,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, उसके बाद कवर करेंगे हम द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च टूल्स, ऑफ गुड रिसर्च टूल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च टूल्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यानी रिसर्च क्या है कि एक स्टेप बाय स्टेप किया जाने वाला प्रोसेस है, एक मेथड है एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स। बेसिकली रिसर्च क्या होता है? मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड एनालिसिंग डाटा। तो ये डेटा हमको कहाँ से मिलता है? अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग फॉर्मेट से डाटा हमको कलेक्ट करना होता है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट एंड facts and reach new conclusion। जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी को एनालिसिस करके, उसी को प्रोसेस करके हम एक न्यू फैक्ट या न्यू थियरी क्रिएट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्च। तो रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो होता है डेटा। तो डेटा क्या होगा? इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड डेटम। ये वर्ड डेटम से बना हुआ है एंड इट मीन्स रॉ फैक्ट अबाउट समथिंग। यानी डेटा क्या होता है कि हम लोग जब किसी प्रोसेस को करने जाते हैं तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग सोर्सेस में होती है। तो उसको हम लोग बोलेंगे स्कैटर्ड डाटा और रॉ डाटा। ये डेटा हमको सब कलेक्ट करके एक जगह पे कंपाइल करना होता है, इसको हम बोलेंगे फाइनल हमारा इंफॉर्मेशन। और ये डेटा हमको कहाँ वेरियस फॉर्म्स में मिलता है। कुछ डेटा हमको बुक्स में मिलेगा, कुछ इंटरनेट में मिलेगा, कुछ हमको उस इवेंट पे जाके कलेक्ट करना होता है, कुछ सर्वे करना होता है। तो अलग अलग सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करके कंपाइल करना पड़ता है एंड रिक्वायर्ड टू प्रूव द सेट हाइपोथेसिस। और इसी डेटा से हम लोगों ने जो हाइपोथेसिस सेट किया होता है रिसर्च वर्क का, वो प्रूव करना होता है और इस तरीके से हमारा रिसर्च वर्क कंप्लीट होता है। तो हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के डेटा कौन से होते हैं। Basically, there are two types of data: qualitative data and quantitative data. Qualitative data means what? कि जो वर्ड और टेक्स्ट फॉर्म में जो डेटा हमको मिलता है, जो थियोरी हमको मिलती है, वो बोलेंगे हम उसको क्वालिटेटिव डेटा। और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, जो कि हमको नंबर फॉर्म में मिलता है या फिगर्स मिलते हैं उसके, तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा की बेसिकली दो टाइप्स है, नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। तो जैसे ही उसका नाम सजेस्ट होता है, नॉमिनल डेटा मतलब नेमिंग स्केल, किसी चीज का एडजेक्टिव फॉर्म या नेम करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको रिसर्च करना है कि प्रेफरेंस ऑफ मोबाइल कवर इन यंगर जनरेशन, तो इसमें हमें चूज करेंगे व्हाइट, ब्लैक, ब्लू। तो ये कैसे हो गई? एडजेक्टिव। और लेकिन इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, जैसे सारे कलर्स हैं, इन सबका इक्वल स्केल है। ये इसमें सब ऐसे नहीं बोल सकते कि वन कलर इज ग्रेटर देन अनदर और वन इज इंफीरियर टू अनदर। इन सबका इक्वल स्केल है। बस जस्ट हमको प्रेफरेंस चूज करना है कि कौन सा कलर ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल है जेंडर, मैन, वुमेन या ट्रांसजेंडर। जैसे हेयर कलर हो गया ब्लैक, ग्रे, ब्लॉन्ड, ब्राउन। तो लोगों का ज्यादा कलर कौन सा होता है। दूसरा स्केल क्या है? ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा मतलब ऑर्डर सेट करना या उनको रैंकिंग देना। जैसे हो गया, जैसे हमको क्लोथ्स का साइज देखना है तो कैसे हो जाएगा? एस, एम, एल या एल, एम, एस। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका ऑर्डर सेट करना है। जैसे ए बी सी डी। इकोनॉमिक स्टेटस, अगर किसी का इनकम लेवल जानना है तो हाई इनकम लेवल, मिडिल इनकम लेवल, लो इनकम लेवल, या उसी का उल्टा लो इनकम लेवल, मिडिल इनकम लेवल है, हाई इनकम लेवल। ये हो गया हमारे क्वालिटेटिव डेटा। और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब नंबर फॉर्म में। इसमें भी दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा मतलब एक फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा, जैसे हमको करने के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंपनी, तो हमको डेटा से मिलेगा 40, 50, 60, एक फिक्स्ड फिगर मिलेगा। और इसके ऑपोजिट होता है कंटिन्यूअस डेटा, जिसका हमको रेंज होता है। जैसे हमको स्टूडेंट्स की हाइट नापनी है तो हम लोग कैसे बोलेंगे? 5 to 6 इंचेस और 6 to 7 इंचेस में एक रेंज दे देते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस डेटा। और डेटा के टाइप्स के बाद हम लोग देखेंगे इनके डिफरेंट सोर्सेस। तो डिफरेंट सोर्सेस क्या होता है? तो हमको डेटा हमको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में मिलता है और या तो नॉन स्टैटिस्टिकल फॉर्म में मिलता है। जो भी हमको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट्स मिलती है, एनुअल रिपोर्ट्स, बजट या किसी का जैसे LIC का रिपोर्ट हो गया, इस टाइप के जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन होती है उनको हम लोग बोलेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा। और लेकिन ये हम लोग को जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर का इंफॉर्मेशन है या किसी का इकोनॉमिक, जैसे हम लोग एक सोसाइटी में जाएंगे वहाँ का उनका फूड हैबिट्स हमको जानना है, तो ये कैसा हो गया? ये नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया, जो कि ये टेक्स्ट फॉर्म में है। और ये डेटा के भी दो अलग सोर्सेस हैं। एक तो होता है इंटरनल सोर्सेज। अगर हमको किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिकॉर्ड्स में से डेटा मिलता है तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज द इंटरनल डेटा ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन।
लेकिन हम लोगों का अगर डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट करके किसी आउटसाइड एजेंसी से कलेक्ट करना है, जैसे हमको एसबीसीटी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन हमको यूनिवर्सिटी से जाके ले रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वो उसका एक्सटर्नल सोर्स हो गया। लेकिन अगर एसबीसीटी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन हम लोग उनकी ही रिपोर्ट्स में से लेंगे तो दैट विल बिकम द इंटरनल सोर्स फॉर द इंफॉर्मेशन। इसके बाद आता है टाइप ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द सोर्स। ये आपके रिसर्च वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा एंड टर्शियरी डाटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जब रिसर्चर उस इवेंट पे जाके खुद पर्सनली विजिट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अलग अलग टूल्स यूज करके। ये टूल्स कैसे भी हो सकते हैं, क्वेश्चनर भी हो सकते हैं, या वहाँ के लोगों का इंटरव्यू लेके, या वहाँ पे इवेंट को ऑब्जर्व करके जब डेटा वो खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्रिएट की जाती है। तो इस टाइप के डेटा को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा के इसमें एग्जांपल्स क्या लेंगे कि ये डेटा हमको कहाँ मिलता है, एक तो हमको रिसर्च रिपोर्ट्स में मिलेगा, या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में मिलेगा, या तो ये डेटा हमको और या थीसिस या डिसर्टेशन के फॉर्म में भी मिलता है। इसमें जो ऑब्जर्वर है वो अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है और उस टाइप से डाटा कलेक्ट करता है। और उसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा। जब प्राइमरी डेटा को प्रोसेस करके मतलब उसको मॉडिफाई करके या उसको रीअरेंज करके हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, देन बिकम सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जांपल, जब सेंसस होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो घर घर प्राइमरी डेटा। अब उसी प्राइमरी डेटा से अगर हम लोग कुछ पार्ट लेते हैं, अगर सिर्फ हमको उनका जेंडर का स्टेट है तो हम लोगों ने सिर्फ उसका मेल या फीमेल का डाटा ले लिया, या किसी का एजुकेशन लेवल जाना तो सिर्फ एजुकेशन का डाटा ले लिया, ना उसका सिर्फ पार्ट ले लिया बिग डाटा में से, तो डेटा क्या हो जाएगा, सेकेंड डाटा। सेकेंड डेटा के एग्जांपल्स क्या होते हैं, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जो लिटरेचर को रिव्यू कर फॉर्म आती है वो हमारा सेकेंडरी डेटा। उसके बाद आता है टर्शियरी डाटा। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डाटा का प्रोसेस करके उनको इंडेक्स करके जो डेटा मिलता है हमको बोलेंगे हम मतलब बंद हो गया था क्या मेरा स्क्रीन? नहीं तो मैम मेरे यहाँ से नहीं हुआ, आपके यहाँ से हुआ होगा। ओके, तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैडम कहाँ तक आया था पहले? सेवन स्लाइड। ये हो गया था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा? 8 जी मैम। यस मैम 8। ओके, ये टाइप ऑफ डेटा के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग डेटा के बाद देखेंगे कि टूल क्या होता है। टूल इज अ मीडियम दैट हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग द टास्क। अगर हम कोई प्रोसेस या कुछ वर्क कर रहे हैं तो उसको जो कंप्लीट करने के लिए हमको जो मीडियम या कुछ चैनल या कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो उस चैनल या डिवाइस को बोलेंगे इट इज अ टूल, यानी एक औजार काम कंप्लीट करने में हमको हेल्प करेगा। Tools are instrument used to collect information for performance assessment, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। किसी प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए जो हमको हेल्प मिलती है, उस हेल्प को बोलेंगे इट इज अ टूल। Tools need to be strong enough to support what the evaluation find during the research। and हमारे जो टूल है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि हमारे जो इवैल्यूएशन हमारे जो पैरामीटर्स है उसको वो फुलफिल कर सके। Depending on the nature of the information to be gathered, different instruments are used to conduct the assessment forms for gathering data। ये डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन किस टाइप की, हमको किस टाइप का डेटा कलेक्ट करना है, हमको किस प्लेस पे जाके डेटा कलेक्ट करना है, उस हिसाब से हमारे टूल्स भी डिफर होते रहते हैं। इट इज अ टेस्टिंग डिवाइस फॉर मेजरिंग अ गिवन इवेंट। अगर कोई इवेंट या कोई एक्टिविटी है तो उसको मेजर करने के लिए जो चैनल यूज हो रहा है दैट इज अ टूल। इसके बाद देखेंगे रिसर्च टूल्स क्या होता है। रिसर्च जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो इसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम लोग जो चीज मतलब जिस इक्विपमेंट को या जिस डिवाइस को हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज अवर
research tool. The instrument used for the purpose of data collection, यानी जो डेटा कलेक्शन के लिए हम जिस मतलब इस मीडियम को यूज कर रहे हैं, दैट इज आवर टूल. तो जनरली हम लोग रिसर्च टूल में अलग अलग टाइप के टूल्स यूज करते हैं रिसर्च के लिए, जैसे हो गया क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड. तो एक रिसर्च वर्क में एक से ज्यादा टूल्स भी हो सकते हैं. The tools are measurable and observable for data analysis and interpretation. या हमारा टूल ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया है हम लोग उसको मेजर भी कर सकें. Constructed by researchers according to objective. रिसर्च का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा हाइपोथेसिस होता है, उसकी बेसिस पे हम लोग अपना टूल डिसाइड करते हैं. और जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक से ज्यादा टूल्स भी हो सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं इसमें रिसर्च में. अब लोग आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स रिसर्च में कहाँ कहाँ पे टूल्स यूज होते हैं. और इसके पहले आप लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च टूल्स क्या होते हैं. और जो हम लोग टूल्स यूज कर रहे हैं रिसर्च के लिए, उसमें तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. फर्स्ट इज द वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब क्या है? द डिग्री टू विच अ टूल मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू बी मेजर्ड. फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे हमको किसी का पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करेंगे. तो हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मोमीटर इज अ वैलिड टूल टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. लेकिन अगर हमको बीपी मेजर करना है और हम उसको उसी चीज को थर्मोमीटर से मेजर करना चाहेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मोमीटर इज नॉट अ वैलिड टूल टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. मतलब उसकी वैलिडिटी है, जो जिस पर्पस के लिए वो टूल बनाया गया है वो उसको क्वालिटी को वो फुलफिल कर सके. वैलिडिटी में भी होती है फेस वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी मतलब एक्सटर्नल उसकी क्वालिटी, कि हम लोग उसको बाहर से देखेंगे कि इट इज यूजफुल और नॉट. जैसे हम लोगों को कार परचेस करनी है, तो हम लोग कार परचेस करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी देखेंगे कि उसका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है. तो ये क्या हो गया? उसकी एक्सटर्नल क्वालिटी जो होगी, दैट इज फेस वैलिडिटी. और उसके बाद सेकंड क्या आती है? कंटेंट वैलिडिटी. कंटेंट वैलिडिटी मतलब कि उसका इनर पार्ट, हमको उसका इनर देखना है टूल का, कि भाई हम लोगों ने जो टूल चूज किया है वो उसका अंदर से परफॉर्मेंस कैसा. जैसे उसी कार के एग्जांपल को ले लो, अगर हम लोग उसके अंदर कंटेंट देखने जाए तो हम लोग क्या देखेंगे? हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन. वो कार मतलब चलाने में कैसी है, स्मूथ है कि उसका कैसा परफॉर्मेंस है, उसका माइलेज क्या रहेगा, हम लोग ये सब देखेंगे. दैट इट बिकम्स अ कंटेंट वैलिडिटी. उसके बाद आती है क्राइटेरियन वैलिडिटी. क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट ऑफ टूल एंड सम एक्सटर्नल क्राइटेरिया टू बी चेक्ड. देखिए जिसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड रहता है क्राइटेरिया. जैसे हमको बता दिया कि कार आपका 25 का एवरेज देगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई उसका चेक करने के लिए हम लोग कई दिन कार चलाकर रोज का एवरेज नोट करेंगे. किसी दिन 20 का एवरेज देती है, किसी दिन 30 का एवरेज देती है. तो हम लोग उसका एवरेज निकाल के जो उसका फिक्स्ड वैल्यू है उसके साथ उसका कंपेयर करेंगे कि भाई हमारा जो कार है हमको बराबर वैलिड एवरेज दे रही है या नहीं दे रही है. यहाँ जैसे इंडिया में मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल इज 21 ईयर्स. अगर हमको रिसर्च करना है कि भाई इंडिया में लेडीज का, गर्ल्स का मैरिजेबल एज एक्चुअल में क्या है, तो हम लोग अपने सैंपल्स का इंटरव्यू लेके या क्वेश्चन भेज के उनका एज ले लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे. तो हम लोग जो फिक्स्ड वैल्यू 21, उसके साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कोरिलेशन क्या है दोनों के बीच में, वो हाईली कोरिलेटेड है या बहुत पुअर कोरिलेशन है. इस तरह वैलिडिटी के बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टूल का, वो आता है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब क्या? कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी टू गिव सेम रिजल्ट्स रिपीटेडली. हमारा जो टूल है, अगर हम लोग उसको बार बार टेस्ट कर रहे हैं तो हमको वो सेम रिजल्ट कितनी बार दे रहा है. जैसे हमको किसी का बॉडी, जैसे मुझे अपना वेट चेक करना है, तो अभी मैंने चेक किया वेट मेरा 60 kg है. आफ्टर 2 आवर्स अगर मैं फिर से चेक कर रही हूँ, then it becomes 60.2 और 59.8 समथिंग नियर. मैं और थोड़ी देर बाद और चेक कर रही हूँ तो 60. तो मैं क्या बोलूँ कि माई टूल इज रिलायबल. लेकिन अगर हम अभी चेक कर रही हूँ 60 आ रहा है, 2 आवर्स के बाद मैं चेक करती हूँ तो ये 57 हो गया. फिर 2 आवर्स के बाद चेक करती हूँ 65 हो गया. तो मैं क्या बोलूँगी? माई टूल इज नॉट रिलायबल, इट इज नॉट गिविंग सेम रिजल्ट्स रिपीटेडली. और थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च टूल है वो होता है यूजेबिलिटी. जो हमारा टूल है वो शुड बी इकोनॉमिकली यूज, ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, वो हमारा टाइम सेविंग करने वाला होना चाहिए, हमारी एनर्जी सेविंग करने वाला होना चाहिए. तो टूल चूज करते समय हमने ये सब कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना है. इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस. यानी क्या होता है जी, टूल ऐसा लेना चाहिए कि जैसे उसमें ना रिस्पोंडेंट बायस हो सके, ना तो जो इंटरव्यूअर है वो खुद बायस्ड हो सके. बायस्ड मतलब कि हमारा किसी चीज के प्रति ज्यादा प्रेफरेंस ना हो. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूल्स के बाद हम देखेंगे कि जब हम रिसर्च वर्क करने जाते हैं तो हमको टूल्स की नीड कहाँ कहाँ पर होती है.
तो पहला तो आता है कि जब हम लोग लिटरेचर पुराना जब हम लिटरेचर रिव्यू करने जाते हैं तो हमको कौन कौन से टूल्स की जरूरत होती है। इसके बाद हमको डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमको देखना है कि डाटा एनालिसिस करने के लिए हमको क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं। उसके बाद डाटा प्रेजेंटेशन के लिए क्या टूल्स की जरूरत होती है, और फाइनली रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमको कौन कौन से टूल्स लगते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम अपने लिटरेचर रिव्यू के लिए रिसर्च वर्क में कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। सबसे पहले होता है कि लिटरेचर रेफरेंस बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स। हम लोग जब भी कोई टॉपिक चूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स यूज करते हैं कि उसके ऊपर पहले क्या स्टडी हो चुकी है, और जो पहले का जो रिसर्च था उसने कहाँ तक स्टडी की है, तो हम लोग वहां तक देख लेते हैं कि उन्होंने उनका असम्पशन क्या था। उसके बाद हमें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड रिसर्च आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में जो अगर हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल पब्लिश हुआ तो हम लोग वो कलेक्ट करते हैं, या कुछ मैगजीन्स में, कुछ जर्नल्स में, या इंटरनेट पे कुछ रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में पब्लिश हुआ तो हम लोग वो भी स्टडी करते हैं। उसके बाद होते हैं जर्नल्स। जर्नल्स में हम लोग साइंटिफिक जर्नल्स हैं, आजकल तो इंटरनेट में काफी सारे ओपन एक्सेस जर्नल्स भी अवेलेबल है, तो हम लोग जर्नल्स को भी रिव्यू करते हैं कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ मटेरियल इसमें अवेलेबल है क्या। नेक्स्ट आते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस एनालिस्ट हो गया, डेलनेट हो गया, ये सब डेटाबेसेस के अंदर जाके जो रिसोर्सेज हैं हम लोग उसको भी ब्राउज करते हैं कि हम हमारा मटेरियल शायद उसमें मिल जाए। नेक्स्ट है थीसिस एंड डेजर्टेशन। थीसिस एंड डेजर्टेशन पीएचडी वर्क का या एमफिल वर्क का डेजर्टेशन होता है, या आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है, या शोध गंगा में जो ऑनलाइन अवेलेबल है फ्रीली, हम लोग उसको भी एक्सेस करके देख सकते हैं कि भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि भी एक्चुअली में लिटरेचर कहाँ तक रिव्यू हुआ था और किस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है। और अभी मोस्ट पॉपुलर मीडियम है इंटरनेट। इंटरनेट में कई सारे रिसोर्सेस हैं, हम लोग उसको भी ब्राउज करके देख सकते हैं कि लिटरेचर कि कौन से ऑथर ने क्या क्या स्टडी किया हुआ है। और लिटरेचर रिव्यू के बाद हमको डाटा कलेक्शन की जरूरत होती है, सॉरी टूल्स की जरूरत होती है डाटा कलेक्शन के लिए। डाटा कलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट ये क्राइटेरिया है हमारे रिसर्च वर्क का। तो इसमें डाटा कलेक्शन भी 3 टाइप से होता है, एक तो लिटरेचर सर्च होता है, दूसरा लेबोरेटरी सर्च होता है, तीसरा होता है फील्ड स्टडी। लिटरेचर सर्च यानी कि हम लोग प्लेन सिर्फ टेक्स्ट उसका रिफर करते हैं कि उसके पहले हिस्टोरिकल क्या हो चुका है, तो जनरली हिस्ट्री या सोशियोलॉजी विषयों में यूज होता है। हम लोग इस पे देखेंगे कि बुक्स में या लाइब्रेरी जाके हम लोग स्टडी करेंगे इसके ऊपर हमारे पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, या इंटरनेट से ब्राउज करके देख लिटरेचर हम लोग सर्च कर सकते हैं। दूसरा होता है लेबोरेटरी सर्च। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं और जियोलॉजी के स्टूडेंट्स लेबोरेटरी सर्च करते हैं, मतलब उनका जो उनको फाइंडिंग्स होते हैं कि किसी केमिकल का किसी चीज के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो वो क्या करेंगे अपने सैंपल्स को उसके ऊपर टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में जाके, और उसका रिएक्शन देखेंगे और उसके ऊपर उसका डेटा कलेक्ट करके वो कंपाइल करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेबोरेटरी सर्च। तीसरा जो होता है फील्ड स्टडी, जो मोस्टली आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लिए यूज होता है, दैट इज द फील्ड स्टडी। और फील्ड स्टडी के अंदर भी कई मेथड्स हैं, तो सबसे पहला मैं देखेंगे हम लोग इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या है, 1-to-1 कम्युनिकेशन है, मतलब हम लोग किसी रिस्पोंडेंट के, जैसे मैं इंटरव्यू ले रही तो मैं हो जाऊंगी इंटरव्यूअर, और हम लोग जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं दैट पर्सन विल बिकम रिस्पोंडेंट। तो इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज द इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड ऐसे 1-to-1 कम्युनिकेशन भी होता है कि इंटरव्यूअर है और रिस्पोंडेंट है 1-to-1 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और दूसरा होता है ग्रुप इंटरव्यू, कि एक इंटरव्यू है और ग्रुप ऑफ पीपल से इंटरव्यू है। जैसे हम मुझे किसी विलेज में जाना है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना है, तो मैं उसमें से चूज करूंगी अलग अलग ग्रुप, एक चिल्ड्रन का ग्रुप, एक फीमेल का ग्रुप, एक मेल का ग्रुप, उसमें भी अलग अलग एज ग्रुप रखूंगी। जैसे चिल्ड्रन का ग्रुप है तो 3 to 6 देन 7 to 8, इस टाइप का अलग अलग ग्रुप्स बनाऊंगी और मैं उनका इंटरव्यू लूंगी और उनके इंटरव्यू के बेसिस पे मैं कंपैरिजन करूंगी। और इंटरव्यू मेथड्स में भी 2 प्रकार है, एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमारे क्वेश्चन जो रहते हैं वो डिसाइडेड रहते हैं पहले से कि मुझे यही क्वेश्चन पूछना है, भाई मैंने डिसाइड किया कि मैंने 10 क्वेश्चन लिया है या मैंने 15 क्वेश्चन लिया है, ये रहेगा भाई उनका एज पूछूंगी, उनका जेंडर पूछूंगी, मैं उनकी एजुकेशन पूछूंगी, मेरे क्वेश्चंस डिसाइडेड रहते हैं, उसके बाहर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, उसमें हमारे क्वेश्चन प्री डिसाइडेड नहीं होते, हमारे क्वेश्चन वो रिस्पोंडेंट के इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, उनके रिस्पांस देने के ऊपर या सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हमारे क्वेश्चन सिचुएशन पे बनाए जाते हैं, दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू।
तो इंटरव्यू के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? द इंटरव्यूअर हैज अ बेटर रिस्पांस रेट देन मेल्ड क्वेश्चन। इंटरव्यू के टाइम पे हम लोगों को क्या होता है कि उनका रिस्पांस तुरंत मिल जाता है, तो एक्चुअल रिस्पांस होता है। और जब क्वेश्चन आयर के टाइम पे क्या होता है कि वो रिस्पोंडेंट क्वेश्चन आंसर लिखता है, तो उस समय वो थोड़ा बायस्ड हो जाता है, इसमें थोड़ा बायसनेस का फीलिंग कम आता है। एंड द पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट कैन आल्सो आंसर द क्वेश्चन। अब इसका दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू कैन जज द नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, जो रिस्पोंडेंट हमको आंसर दे रहा है हम लोग वो तो नोट डाउन करते ही है, दूसरा नॉन वर्बल बिहेवियर, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसके बेसिस पे भी हम लोग अपना एनालिसिस लिख सकते हैं कि भाई वो ऐसा बोल रहे थे तो उनका हो सकता है आंसर ऐसा भी हो। तो इस तरीके से हम लोग नॉन वर्बल बिहेवियर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इंटरव्यूअर कैन डिसाइड द प्लेस ऑफ फॉर एन इंटरव्यू इन अ प्राइवेट एंड साइलेंट प्लेस, unlike the ones conducted through mails and which cannot have a completely different environment. हम लोग उसको किसी से जैसे इंटरव्यू लेना है तो हम लोग ऐसे उनको एक शांत प्लेस पे या किसी एक ऐसी जगह पे बुला सकते हैं जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हमको किसी से प्राइवेट क्वेश्चन पूछना है किसी की पर्सनल लाइफ पे, तो हमारा रिस्पोंडेंट नहीं चाहता है कि भाई वो हमारा आंसर कोई और भी सुने, तो ऐसे टाइम पे हम इंटरव्यू मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर डेटा कलेक्शन। Next is the interviewer can control over the order of the question as in the questionnaire and can judge the spontaneity of the respondent as well. हमें जिस समय का इसका एक एडवांटेज वो भी है कि इंटरव्यूअर जो है वो अपने क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकता है रिस्पोंडेंट के बिहेवियर के ऊपर। और अब इसके एडवांटेजेस के बाद हम लोग देखेंगे कि कोई इंटरव्यू मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। Conducting interview studies can be very costly as well as very time consuming. इंटरव्यू के लिए हमको रिस्पोंडेंट तक जाना होता है, उस इवेंट तक जाना होता है जिसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है, और हमको कुछ इक्विपमेंट्स भी लेके जाना होता है, इसलिए ये मेथड थोड़ा कॉस्टली है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि हमको एक एक रिस्पोंडेंट तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है एन इंटरव्यू कैन कॉज बायसेस। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज था कि इसमें बायस नहीं होता क्योंकि वो रिस्पोंडेंट तो तुरंत आंसर देना होता है, तो लेकिन इसमें बायसनेस होता भी है क्योंकि रिस्पोंडेंट कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहता है। जैसे किसी लेडी को हम लोग उसका एज पूछ लेंगे तो उसका वो एक्चुअल एज मोस्टली नहीं बताते कि कम बताते हैं, या चिल्ड्रन को हम लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारा पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसा है, तुम्हारा टीचर के साथ रिलेशन कैसा है। अगर हम उनसे स्कूल में जाके पूछेंगे तो स्टूडेंट बायस्ड हो जाता है, वो अपने टीचर के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलेगा। तो इस तरीके से इंटरव्यू मेथड का एक डिसएडवांटेज भी है। और दूसरा एग्जांपल इसका, द रिस्पोंडेंट्स आंसर कैन बी अफेक्टेड बाय दिस रिएक्शन टू द इंटरव्यूज रेस, क्लास, एज और फिजिकल अपीयरेंस। में हो जाता है कास्टिज्म की बात भी आ जाती है, इसमें क्लास की बात भी आ जाती है, एज डिफरेंसेस की बात आती है कि इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट के बीच में एज डिफरेंस कितना है, दोनों की कास्ट क्या है या दोनों का क्लास क्या है, तो इस वजह से सामने वाले का आंसर भी डिफर करता है। इंटरव्यू मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड है डाटा कलेक्शन का। क्वेश्चंस की हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या है, और हमको उसमें हमको हमारे डाटा प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सेस की आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग एक क्वेश्चनायर यानी क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चनायर में भी दो तरीके के क्वेश्चनायर बनते हैं, एक तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चनर क्या होता है, जिसमें रिस्पॉन्सेस हमारे यस नो फॉर्म में होता है। जैसे मैं बोलेंगे डू यू लाइक कॉफी, तो हमारा आंसर होगा यस नो, मतलब उसमें एंड क्लोज हो गया, उसमें बाकी तीसरी चीज लिखने की उसमें गुंजाइश नहीं होती है। उसको हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में देखते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ योर क्लोथ, जैसे एस एम एल एक्सएल, ऐसे हम लोग उसके कुछ ऑप्शंस दे देंगे एमसीक्यू टाइप से। तो ये हो गया हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चनर। ओपन एंडेड क्वेश्चनर में क्या होता है, हम लोग फ्री छोड़ देते हैं रिस्पोंडेंट को, अपने व्यू लिखेगा। हम लोग जैसे लिखेंगे व्हाट इज योर व्यू अबाउट एसबी सिटी कॉलेज, तो हमारा स्टूडेंट अपना उनको 4-5 लाइन छोड़ के तो अपने अलग अलग व्यू लिख लेगा, दैट बिकम्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चनर। इसमें भी एक और मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसमें होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर मतलब इसमें पहले से क्वेश्चंस डिसाइडेड होते हैं कि भाई हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे, और अनस्ट्रक्चर्ड में होता है कि क्वेश्चन रिस्पोंडेंट टू रिस्पोंडेंट हमारे वैरी होते हैं। अभी क्वेश्चनर मेथड का एडवांटेजेस क्या है,
इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। ये बहुत इजी होता है कि भाई हमारे अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है, जैसे हमारा सैंपल साइज 5000 पीपल है, तो हम लोग एक एक के पास जाके तो इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो इसलिए ऐसे टाइम पे हम लोगों ने भी सब ग्रुप्स को हम लोगों ने क्वेश्चन सेंड कर दिया और वापस मंगा दिया। क्वेश्चन हम लोग पर्सनली जाके भी दे सकते हैं। अगर हमारा सैंपल साइज छोटा है तो हम लोग एक एक रिस्पॉन्डेंट के पास जाके क्वेश्चन दे सकते हैं, कुछ टाइम के बाद कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है तो हम लोग उनको ईमेल या बाय पोस्ट उनको हम लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं। दूसरा है कि वेरी हेल्पफुल फॉर द रिसर्चर। अब क्वेश्चन जनरली प्रिंट फॉर्म में होता है, तो हमारा जो डेटा कलेक्टर रहता है वो काफी टाइम तक हमारे पास जमा भी रहता है और हम लोग किसी टाइम उसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये रिसर्चर के लिए बहुत हेल्पफुल टूल है। दूसरा टाइम सेविंग, इसमें हमारा टाइम काफी बचता है कि भाई क्वेश्चन हमने बाय पोस्ट भेज दिया, बाय मेल भेज दिया और वहां से हमको कुछ समय बाद उनको टाइम लिमिट दे दिया, टाइम के बाद हमारे पास वापस आ जाता है। तो इससे हमारा टाइम बचता है, हमको एक एक के पास जाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा है कि इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। एक सिंपल क्वेश्चन की लिस्ट बना दीजिए, उसको गूगल फॉर्म बना दीजिए, आप अपने रिस्पॉन्डेंट तक भेज दीजिए। बहुत सिंपल वे है कम्युनिकेशन का एंड नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। इसमें आपको ज्यादा कुछ खर्चा करना नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको पोस्ट की टिकट लगानी होती है टू एंड फ्रो की, या आपको कुछ इंटरनेट का खर्चा करके उसको मेल से क्वेश्चन भेजना होता है। दूसरा है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लैक ऑफ रिटर्न। आपको इस चीज की गारंटी नहीं होती है कि आपने जिसको पोस्ट किया है या जिसको मेल किया है क्वेश्चन आया वो आपको रिटर्न आएगा, या आपको कई बार उनको फॉलो अप लेना होता है कि भाई हमारा क्वेश्चन भेजा गया आपको, आप उसका रिस्पॉन्ड करिए। दूसरा होता है टाइम टेकिंग इफ रिस्पॉन्डेंट केयरलेस एंड लेजी। कई बार रिस्पॉन्डेंट, जैसे हम लोग लाइब्रेरी साइंस में जब स्टडी करते हैं तो हम लोग लाइब्रेरियंस या स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स इतने केयरलेस लेजी होते हैं कि हमारा टाइम का भी टाइम होता है। मतलब 1 वीक का अगर उनको ड्यूरेशन दे दिया जाए तो 2 मंथ्स में डेटा आता है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। स्केर्सिटी ऑफ स्किल्ड रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट किस टाइप से आंसर करेगा उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्वेश्चन तो रिस्पोंडेंट की समझ में नहीं आता है तो उसको अपना अजम्पशन के बेसिस पे उसका आंसर करता है। चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग बाय रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग से, मतलब उसको क्वेश्चन का मतलब अगर वो कुछ अलग समझ रहा है तो वो कुछ अलग रिप्लाई करेगा, तो जब हमारा डेटा कलेक्ट होकर आएगा तो उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन आयर के बाद नेक्स्ट जो टूल है डेटा कलेक्शन का, दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर जो रिसर्चर है वो जो इवेंट का प्लेस है वहाँ पे पर्सनली जाके ऑब्जर्व करते हैं कि इवेंट किस दिन हुआ, किस जगह पे हुआ, किस तरीके से हुआ, किस सोसाइटी में हुआ, किस प्लेस पे हुआ है, वहाँ के लोगों के वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, ये सब स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया जाता है। इसके भी 3 टाइप है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इसमें जो रिसर्चर है वो डिसाइड रहता है कि उसको व्हाट टू ऑब्जर्व, हाउ टू ऑब्जर्व, व्हेन टू ऑब्जर्व एंड वेयर टू ऑब्जर्व। पहले से डिसाइड होता है कि उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है। एंड वहाँ पे ड्रेसिंग सेंस, जैसे मुझे किसी सोसाइटी का देखना है तो सिर्फ देखूंगी कि मेल का ड्रेस कैसा है, वहाँ पे फीमेल का ड्रेस कैसा है। मेरा स्ट्रक्चर रहेगा, मुझे वो क्या क्या चीजें मुझे ऑब्जर्व करनी है और मुझे किस टाइम पे करनी है और कितना करना है, बस मेरा सब डिसाइडेड रहेगा। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि डिसाइडेड नहीं होता है, वो रैंडमली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमको वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। जैसे अनस्ट्रक्चर्ड मोस्टली तब किया जाता है जब हम लोग उस फील्ड के बारे में नहीं होते, जैसे मुझे बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और मैं किसी बैंक में जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि उसका वर्किंग कैसा है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा। मैं रैंडम पूरा ऑब्जर्व करूंगी कि वहाँ पे कौन कौन से टेबल्स हैं, वहाँ पे हर एक टेबल पे क्या क्या वर्क किया जा रहा है, वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, मैं सारे स्टडी करके आ जाऊंगी। और तीसरा ऑब्जर्वेशन होता है पार्टिसिपेटिव। उसमें कैसा होता है, रिसर्चर जो खुद होता है वो एक पार्ट होता है इवेंट का। जैसे हमको एक फुटबॉल मैच के बारे में मुझे स्टडी करना है कि फिर उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, गेम कैसा खेला जाता है, उसका एक्सपीरियंस क्या जाता है, मैं खुद भी मतलब रिसर्चर खुद एक प्लेयर रहेगा उसमें और वो खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस कर लेगा। तो ये हो गया ये पार्टिसिपेटिव रिसर्च। पार्टिसिपेटिव रिसर्च में क्या होता है कई बार कि इंसान उस चीज में इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो एक रिसर्चर था। तो उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी एक रेटिंग स्केल में होता है कि हम लोग एक उसको रेट करते हैं कि गुड, बेटर, पुअर, इस टाइप से हम लोग रेट करके आते हैं कि मेरा ऑब्जर्वेशन किस टाइप से था। जनरली हम लोग जब जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं उसमें आखिर में रेटिंग स्केल होता है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसे था,
पुअर, गुड, बेटर, एक्सीलेंट, इस टाइप से हम लोग उसको रेटिंग कर देंगे हमारे ऑब्जर्वेशन को। दूसरा होता है चेक लिस्ट, हम लोग एक क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करके जाएंगे और उसको टिक करेंगे कि ये था, जैसे इंस्पेक्टर है उसको एक होटल का ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उसकी चेकलिस्ट रहेगी कि क्वालिटी ऑफ फूड कैसा था, उसके ऊपर टिक, वहाँ का वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसा था, उसके ऊपर टिक, वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, उसके ऊपर टिक, और उनका वो दूसरे अब जो भी अलग अलग उसमें क्वेश्चन आएंगे कि वहाँ पे हाइजीन था कि नहीं था, वहाँ की क्रॉकरी किस टाइप की यूज हो रही, तो उसकी एक चेकलिस्ट पहले से प्रिपेयर रहेगी, वो उसके ऊपर सिर्फ मार्क करेगा कि उसने ये चीजें ऑब्जर्व की है। नेक्स्ट है सीसीटीवी कैमरा, ये होता है सीसीटीवी कैमरा हम लोग रिस्पोंडेंट को बगैर बताए या उनको बताकर भी हम लोग जनरली उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था इवेंट के सीन पे। सीसीटीवी कैमरा कई बार इसको अनएथिकल मींस ऑफ टूल डाटा कलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई बार रिस्पोंडेंट का ऐसा बिहेवियर भी हम लोग देख पाते हैं जो रिस्पोंडेंट नहीं चाहता कि हम इंटरव्यूअर के सामने आए। सो these are the types of observation methods। हम लोग इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। The main advantage of observation is its directness, and हम लोग को क्या हो डायरेक्टली हमको व्यू हो जाता है कि वहाँ पे इवेंट पे एक्चुअली हुआ क्या था। We can collect data at the time they occur, उस टाइम जिस समय वो इवेंट हो रहा है हम लोग उसका लाइव पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं, वहाँ के फोटोग्राफ्स कलेक्ट करके या वहाँ के ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करके, यहाँ पे पास से लोगों का इंटरव्यू लेके हम लोग यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है द ऑब्जर्वेशन मेथड प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेसी since the observer directly interacts with the observed, यानी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के एक्चुअल पिक्चर के साथ, तो इसमें जो हमारा डेटा कलेक्टेड होता है वो हाईली एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट है there is a particular phenomena that cannot provide information verbally regarding their behavior, activities, feelings, etc. जैसे हमको वहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लिए कश्मीर में हमको स्नोफॉल का एक्सपीरियंस लोगों का जानना है, तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे लोगों से नहीं पूछ सकते, वहाँ पे हम लोग एक्चुअल जाएंगे तो उनकी बिहेवियर से, उनकी फीलिंग से, उनकी एक्टिविटी से उनका हम लोग रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ एक्चुअल बिहेवियर उनका पता चलता है। फॉर दिस फेनोमेना ऑब्जर्वेशन मेथड इज एन एप्रोप्रिएट टूल। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है। देयर आर वेरियस पर्सनल फैक्टर्स इन बिहेवियर्स व्हिच कैन नॉट ऑब्जर्व, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन होते हैं रिस्पोंडेंट के जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग रिस्पोंडेंट के साथ 24/7 नहीं रह सकते हैं। एंड ऑल्सो मैनी टाइम्स रिस्पोंडेंट रिफ्यूज टू लेट allow the observer observe his activity, कई बार रिस्पोंडेंट भी नहीं चाहता कि वो कुछ एक्टिविटीज उनके डेटा कलेक्शन में आए, तो इस समय डेटा रिस्पोंडेंट डायरेक्टली रिफ्यूज कर सकता है कि भाई मैं आपको ये ऑब्जर्व करने की परमिशन नहीं देता हूँ। दूसरा होता है पास्ट लाइफ रिमेन्स अननोन, अगर हम लोग कुछ इवेंट देखने जा रहे हैं तो हम लोग इवेंट का सिर्फ एक्चुअल में उस समय क्या हुआ था, लेकिन उसके बारे में उसके बारे में उसका जो पास्ट था या उसके इवेंट के पहले क्या हुआ हम लोग वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते इसमें। तीसरा इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमको एक्चुअल सीन पे जाना होता है, एक्चुअल प्लेस पे ट्रैवल करके जाना होता है, तो उसका कॉस्ट आ जाता है इसमें। स्टेइंग एट द प्लेस, वहाँ पे हमको रहना भी होता है तो उसका भी कॉस्ट उसमें ऐड हो जाता है। Where the phenomena occur and buying sophisticated and high quality tools and research, अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ जैसे फोटोग्राफ्स लेने हैं या कुछ वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट करने, तो सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए हमको कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता है, तो ये सब इक्विपमेंट परचेस करने के लिए भी उसमें कॉस्टिंग का फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट मेथड है डाटा कलेक्शन का बायोफिजिकल मेथड। ये मेथड मेडिकल साइंसेस में और नर्सिंग में ज्यादा यूज होता है। इसमें हम लोगों की बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स को रिकॉर्ड करते हैं विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। इसमें जैसे एग्जांपल्स हो गए, जैसे हमारा कोई पेशेंट है तो हमको अगर उसकी फिजिकल, तो इसका पर्पस क्या होता है बायोफिजिकल मेथड का, टू स्टडी बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी उसकी बॉडी के क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड करना। टू स्टडी कोरिलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग विद पेशेंट्स प्रॉब्लम, पेशेंट ने जो अपना प्रॉब्लम बताया है और उसको जो उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसका दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है कि उसका प्रॉब्लम कहाँ तक सॉल्व हो पा रहा है, ये स्टडी करने के लिए। टू स्टडी नर्सिंग इंटरवेंशन, है उसको जो नर्सिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, ये सब स्टडी करने के लिए बायोफिजिकल मेथड यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ बायोफिजिक्स में दो मेथड्स है, इन विवो बायोफिजिकल मेथड्स एंड इन विट्रो बायोफिजिकल मेथड। इन विवो बायोफिजिकल मेथड में क्या होता है कि मेजरमेंट्स आर डायरेक्टली परफॉर्म्ड ओवर द ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट।
अगर हमारा कोई हार्ट पेशेंट है तो हम लोग उसको ईसीजी मशीन के थ्रू एंड इको के थ्रू हम लोग उसका स्टडी करेंगे। और यहाँ किसी का हमको ऑक्सीजन सैचुरेशन जाना है तो हम लोग ऑक्सीमीटर यूज करके उसका मेजरमेंट लेंगे। यहाँ उसका कार्डियक कंजम्पशन जाना है तो ईसीजी मशीन के थ्रू उसका रिकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो इन विवो यहाँ कोई पेशेंट है उसकी बॉडी का स्टडी करना, उसका फिजिकल एंड उसका बायोलॉजिकल रिएक्शन नोट करने को बोलेंगे इन विवो बायोफिजिकल मेथड। और इसके अगेंस्ट होता है इन विट्रो बायोफिजिकल मेथड। इन विट्रो में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में को चेक नहीं करना होता है, हम लोगों को उसका एक्सटर्नल मतलब उसकी बॉडी उसके सैंपल्स लेके हम लोग these experiments are carried out outside his body। जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे हम लोग का कोविड का पेशेंट था, कोविड पेशेंट का हम लोग बॉडी तो उसका स्वैब का सैंपल लेके लैब में चेक किया जा रहा था। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ विट्रो बायोफिजिकल मेथड। जैसे कोई हमको डिजीज का फाइंड करना कि इसको डिजीज है या नहीं, किसी को जॉन्डिस है या नहीं, तो उसका ब्लड सैंपल लेके उसको पैथोलॉजी लैब में टेस्ट किया जाएगा। तो ये बॉडी के बाहर हो रहा है ये टेस्टिंग, तो इसको बोलेंगे इन विट्रो बायोफिजिकल मेथड। जैसे हम लोगों की बोन्स का स्ट्रक्चर जानने के लिए डॉक्टर जनरली हमको एक्सरे सिटी स्कैन करने के लिए बोलते हैं, तो ये सब हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे हो रहा है। तो इट इज अ विट्रो बायोफिजिकल मेथड। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू हम लोग किसी का इनर वर्ल्ड है, किसी की साइकोलॉजी अगर जाननी है तो इसके लिए हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज करते हैं। किसी की पर्सनालिटी ट्रेट्स की स्टडी करनी है, किसी का थिंकिंग पैटर्न जानना है, किसी का ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी, किसी का आईक्यू लेवल जानना है, तो ये सब रिस्पॉन्सेस को नोट करने के लिए हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प लेते हैं। तो इस टाइप के टेस्ट इस टाइप के डेटा कलेक्शन टूल को बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक। डेटा कलेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा का एनालिसिस करना। तो डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग के जो टूल्स हैं वो होता है तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, ग्राउंड एंड थ्योरी एंड केस स्टडी। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग बस एक मतलब हमने जो एनालिसिस किया उसको हम लोग वर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि हमने ये एनालिसिस किया, हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर हमारे ये सजेशंस हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव, जनरली डिस्क्राइब करना टेक्स्ट फॉर्म में। और उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट होती है, काई टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट, टी टेस्ट, तो ये सब टेस्ट यूज करके हम लोग अपना डाटा जो रहता है उसका एनालिसिस करते हैं और अपने जो सेट हाइपोथेसिस है उसको चेक करते हैं। तो ये सब टेस्ट जब स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करके एनालिसिस किया जाता है मैम आवाज नहीं आ रहा है आपका। मॅडम तुमचं हे झालेलं आहे आवाज। हा आता येत आहे। सर कहाँ तक रहेगा था हमारा, फिर रिकनेक्ट हुआ यहाँ पे से। हाँ स्क्रीन शेअर दिसत आहे, स्क्रीन शेअर बंद करायचं आहे का तुम्हाला? कोई है क्या वहाँ पे? हाँ आहे ना, सुरू आहे ना स्क्रीन शेअर। स्टैटिस्टिक अपने ये शुरू है मैडम, ये 20 शुरू है। नंबर 20 हाँ। नंबर की 20 नंबर से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द कंप्यूटेशन। हाँ हाँ ओके ओके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है जो हमने ऑब्जर्व किया है उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा एनालिसिस का टूल है दैट वन इज स्टैटिस्टिकल। मैडम आवाज नहीं आवाज नहीं आ रहा है क्या?
ओके, तो इस टाइप के डेटा को बोलते हैं स्टैटिस्टिक। और ये जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, एसपीएस, एसपीएस या एक्सेल में यूज करके भी हम लोग ये टेस्ट एनालिसिस टूल यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, थीम्स और कंसेप्ट, यानी हम लोग उसका टेक्स्ट ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा वर्ड कई बार क्या कंसेप्ट उस पर आया है। इस टाइप के टेस्ट को बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। यूजिंग quantify and analyze the presence, meaning and relationship of such words, themes and concepts, यानी जो वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं, थीम्स यूज हो रही है, हम दोनों उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितना कोरिलेशन है, ये सब की स्टडी करने को बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट इज द ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? when you want to explain why a particular phenomena happened, then using grounded theory for analyzing qualitative data is the best result। अगर हमको कोई phenomena का स्टडी करना है कि ये फेनोमेना क्यों हुआ, यहाँ पे वोल्केनो क्यों ऑकर हुआ, यहाँ पे बाढ़ क्यों हुआ, इस टाइप की जब स्टडी करनी होती है तब हम लोग ग्राउंडेड थ्योरीज से एनालिसिस करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरीज अप्लाई टू स्टडी डाटा अबाउट द होस्ट ऑफ सिमिलर केसेस अकरिंग इन डिफरेंट सेटिंग्स। हम लोग उसमें जाएंगे कि उसमें एक ही टाइप का जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, एक ही टाइप का इंटरव्यू अलग अलग रिस्पोंडेंट को देंगे, अलग अलग ग्रुप्स में देंगे और पूरे ग्रुप का हम लोग अलग अलग से स्टडी करेंगे कि इस ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इस ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये इस ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सेम हमारा ग्रुप, हमारा सैंपल साइज सेम रहेगा, सेम सैंपल रहेगा, लेकिन अलग अलग सेटिंग्स में। अगर आज उनको दे रहे हैं, एक हफ्ते बाद हम सेम ग्रुप को फिर से वही क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम उनको सेम क्वेश्चन पूछे जाए तो डिफरेंट सेटिंग में उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस टाइप की स्टडी को बोलेंगे हम लोग grounded theory। And when researchers are using this method, they might alter explanations or produce new ones until they arrive at some conclusion। इस टाइप की स्टडी में क्या होता है, हम लोगों को बार बार अलग अलग टाइप से एनालिसिस करना होता है जब तक कि हम लोग एक सेट थ्योरी पे नहीं आते कि नहीं इनका यही रिस्पॉन्स है, क्योंकि रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स बार बार बदलता है। तो हम लोग एक बार उनका रिस्पॉन्स लेंगे, सेकेंड टाइम लेंगे, थर्ड टाइम लेंगे, फोर्थ टाइम लेंगे, तो जो मैक्सिमम टाइम उनका रिस्पॉन्स है उसको हम लोग उसको अपनी थ्योरी उस पर सेट करेंगे। दैट इज द ग्राउंडेड थ्योरी। Next is case study। The case study method is a learning technique in which the student is faced a particular problem। The cases में क्या होते हैं, एक particular case, एक particular patient हो गया हमारा या particular phenomena हो गया, उसकी स्टडी करने को बोलेंगे हम केस स्टडी। जैसे हमको एजुकेशनल लेवल देखना है नागपुर सिटी का, अगर हमने पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट ले लिए, जैसे एसबी सिटी कॉलेज ले लिया, तो हमारा क्या होगी, केस स्टडी हो गया। हमारा एसबी सिटी कॉलेज इज हमारा वन ऑफ द केस। It is used to generate an in-depth, multifaceted understanding of a complex issue in its real-life context। and real life में actual में क्या क्या issue आ रहे हैं, इसमें हम अलग-अलग cases लेके उसके ऊपर हम लोग study करेंगे। अच्छा, डेटा एनालिसिस के बाद नेक्स्ट होता है हमारा डाटा प्रेजेंटेशन। तो हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, हम लोग उसको प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्म में उसको हम लोग कैसे प्लेन टेक्स्ट में लिखेंगे, हम लोग जो भी लिखा हमने अपना स्टोरी बना के उसका वैसे लिखेंगे, हमारा यही ऑब्जर्वेशन था। दूसरा है टेबल फॉर्म में, जब हमारा डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है या हमारी रेटिंग स्केल होती है, तो इस टाइप के डेटा को हम लोग टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि जैसे इनकम लेवल है तो हाई इनकम लेवल के इतने लोग थे, लो इनकम लेवल के इतने लोग थे, मिडिल इनकम वाले इतने लोग, टेबल बना लेंगे। या हम लोग उसको ग्राफिकली प्लॉट भी कर सकते हैं। जो ग्राफिकल प्लॉट करने के लिए अलग अलग जो टूल्स हैं, दैट आर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, अलग अलग टाइप के जो चार्ट्स होते हैं उनकी हेल्प लेके भी हम अपना डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा प्रेजेंटेशन के बाद होता है कि हमको अपना हाइपोथेसिस चेक करना होता है, हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कई सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं। तो जनरली हम लोग सोशल साइंसेस में स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं लगाते हैं, टी टेस्ट या कास्को टेस्ट के ऊपर नहीं लगता है, लेकिन मैंने इसका एनालिसिस करके लिखा हुआ यहाँ पे डेटा निकाला हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि प्रेडिक्टर वेरिएबल हमारा कैसा है, कि हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है या हमारा डेटा क्वालिटेटिव है। अगर हमारा डेटा क्वालिटेटिव है तो हम लोग उसमें उसका लेफ्ट साइड में देखेंगे हम लोग का डेटा कैटेगरिकल या क्वालिटेटिव है तो उसका आउटकम क्या है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। अगर हमारा डाटा क्वांटिटेटिव आएगा तो हम लोग एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट चूज करते हैं
अगर हमारा डाटा क्वांटिटेटिव एक न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा आ रहा है तो हम लोग एक कंपैरिजन ऑफ मीन्स टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं। और उसमें भी टेस्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे ग्रुप कितने बन रहे हैं, 2 ग्रुप बन रहे हैं कि 2 से ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं। अगर 2 ग्रुप बन रहे हैं तो टी टेस्ट इज सफिशिएंट। अगर 2 से ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं, अगर उसमें एक ही वेरिएबल है तो अनोवा टेस्ट लगेगा उसमें, और 2 से अगर ज्यादा ग्रुप है तो उसमें मैनोवा टेस्ट लगेगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है जो साइंस के स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ज्यादा समझ पाते हैं, फिर भी बता देती हूँ मैं। अगर हमारा डाटा पूरी तरह से क्वांटिटेटिव पूरा नंबर जो हमारे से रिजल्ट आ रहा है उसके जो पैरामीटर्स है वो हमारे कैटेगरिकल है या क्वांटिटेटिव है। कैटेगरिकल रहेंगे तो हम लोग उसमें रिग्रेशन एनालिसिस लगा सकेंगे। अगर हमारा डाटा क्वांटिटेटिव है तो उसमें फिर से चेक करेंगे कि हमारे वेरिएबल्स कितने 1 है या मोर देन 1 है, तो उसमें हम लोग सिंपल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन मेथड लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स में भी ये यूज करते हैं। और जनरली हम लोग इसके लिए स्टैटिस्टिकल जो लोग रहते हैं उनकी हेल्प लेते हैं कि ताकि हम लोगों को इसमें एरर ना आए। और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद हमको साइटेशन एनालिसिस, साइटेशन राइटिंग के लिए टूल्स की जरूरत होती है। तो उसमें मैंने इसमें 4 टाइप के अलग अलग टूल्स निकाले हैं: ML स्टाइल, शिकागो स्टाइल, APA स्टाइल एंड वैनकूवर स्टाइल। ह्यूमैनिटीज के लिए जनरली ML स्टाइल होता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया ML स्टाइल लिखने का। तो ML स्टाइल में कैसे लगता है, जो ऑथर का नेम होता है उसका सरनेम पहले कॉमा लगा के उसको फर्स्ट नेम फुल लिखा जाता है। उसके बाद उसका जो रिसर्च का जो वो था, जो मेन बुक का टाइटल है वो लिखा जाता है इटैलिक्स में, क्वेश्चन मार्क लगा जाता है आखिरी में। उसके चैप्टर का नाम है, उसके टॉपिक का नाम लिखा जाता है, B और D है, देन डॉट लगाते हैं उसमें। उसके बाद उसका जो पब्लिशर है वो लिख के कॉमा लगा के उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए ML स्टाइल यूज होता है। नेक्स्ट होता है शिकागो स्टाइल। शिकागो स्टाइल होता है जो बिजनेस एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो शिकागो स्टाइल में साइटेशंस लिखते हैं। तो उसमें कैसे होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसमें फुल नेम फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम विदाउट कॉमा हम लोग उनका नाम लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाया जाता है। उसके बाद वो जो उनका आर्टिकल है, कौन सा जो मेन बुक या मेन जर्नल था उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद उसके पब्लिशर पेज नंबर होते जहाँ पर होगी शिकागो स्टाइल। देन इसके बाद आता है जो एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड साइंस के स्टूडेंट्स को यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग उसका सरनेम लेके उसके इनिशियल्स लिखते हैं। उसके बाद उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन को ब्रैकेट में डालते हैं। देन उसका जो मेन आर्टिकल उसको हम इटैलिक्स में लिख के प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, और उसके बाद पब्लिशर का नाम लिखा जाता है। और एक है वैनकूवर स्टाइल जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स और टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो उसमें भी सेम ये सरनेम के साथ इनिशियल लिखे जाते हैं, फर्स्ट नेम, तो उसके बाद डॉट लगाया जाता है। उसके बाद जो टॉप में पेपर है या बुक है उसका टाइटल लिखा जाता है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ब्रैकेट में लिखी जाती है, कोलन लगा के आपका जो पब्लिकेशन का पब्लिशर है उसका नाम और ईयर लिखा जाता है। तो ये मेरा रिसर्च था डाटा के ऊपर। इसके ऊपर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सपोनेंट? Madam, I have ended my presentation. If any question from all the audience, they can ask. हाँ ठीक है मैडम। Okay. I thank the organizers for giving me this opportunity, and I am also thankful to this committee, Damayanti Madam and Bhavya Madam, for cooperating for the conduct for handling this Zoom and all technical support. Thank you so much, sir. Thank you, madam. On the behalf of SBCT College Nagpur, I extended a really hearty vote of thanks to our today's guest, Dr. Mohini Bherwani madam, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Madam, your knowledge has enlightened our mind and have shown us new path. Thank you so much, madam. Your lecture, it was very important and fruitful for everyone. Thank you. And I declare today's tools of research session is over, and request to all please wait for the next session. Thank you.
आता रेकॉर्डिंग